دیگر خبروں میں آپ کو بتاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان میں زراعت جدت کی جانب گامزن۔ سیکریٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عطیل کا احسن اقدام۔ کوہ سلیمان پر 185 ملین کا میگا پروجیکٹ منظور۔ محکمہ زراعت کے دفاتر کا قیام اور مشینری بھی لی جائے گی۔ موسمی سبزیاں اور گندم کی فصل لگانے کا پلان بھی مرتب کر لیا گیا۔ کوہ سلیمان میں محکمہ زراعت کا انقلابی اقدام شروع ہونے کا وقت آ گیا۔ ڈیرہ غازی خان کوہ سلیمان میں زراعت کو فروغ دینے کے لیے محکمہ زراعت متحرک ہو گیا۔ ثاقب علی عطیل کا کوہ سلیمان کے حوالے سے پرپوزل حکومت پنجاب نے منظور کر لیا ہے۔ محکمہ زراعت کے انتظامی ڈھانچے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ حکومت پنجاب نے 185 ملین کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ کوہ سلیمان میں محکمہ زراعت کے دفاتر قائم کرنے کے ساتھ مشینری بھی لی جائے گی۔ سبزیاں، گندم اور زیتون کی کاشت کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ حکومت پنجاب نے زراعت میں پہاڑوں پر پیدا ہونے والی فصلوں کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ اور مالی بحران کا شکار ملتان واسا کا نادہندگان سے آڑے ہاتھوں نمٹنے کا فیصلہ۔ 81 کروڑ کے واجبات کی وصولی کے لیے زیرو ٹالرنس مہم کا آغاز۔ واجبات ادا نہ کرنے پر سیوریج اور واٹر کنیکشن کاٹنے کا حکم۔ ایم ڈی واسا کے متعلقہ افسران کو احکامات جاری۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ واسا ملتان شدید ترین مالی بحران کا شکار۔ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا ناصر اقبال نے روہی کو بتایا کہ گزشتہ ماہ صرف 4 کروڑ ریکوری کی گئی ہے۔ ہم جتنی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جنہوں نے اللیگل کنیکشنز لیے ہوئے تھے، ہم ان کے تمام کنیکشنز ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا جن کے اگینسٹ ریکوری ڈیو تھی ان کو بھی نوٹسز دیے ہیں۔ ایم ڈی واسا ناصر اقبال کا کہنا تھا کہ کمرشل اور انڈسٹریز نادہندہ کے خلاف ترجیحی بنیادوں پر مہم شروع کی گئی ہے۔ واسا کی کمرشل صارفین مجموعی طور پر 62 کروڑ، انڈسٹریل صارفین 7 کروڑ 6 لاکھ کے نادہندہ ہیں۔ سرکاری اداروں نے بھی 11 کروڑ 11 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں۔ بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو کہ ابھی ہم سے رجوع کر رہی ہیں پیسے دینے کے لیے، ایک آدھ دے بھی گئے ہیں، باقی جو آفیسز ہیں ان کو بھی نوٹسز دیے ہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ناصر اقبال کا کہنا تھا کہ واسا کے مسائل کم کرنے کے لیے ریکوری بڑھائی جائے گی۔ نادہندگان کے سیوریج اور واٹر سپلائی کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے۔ کیمرامین رضوان کے ہمراہ رضا مالک، ملتان۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے شہریوں کی شکایت پر نوٹس لے لیا، تجاوزات کے فوری خاتمے کا حکم دے دیا۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی میٹروپولیٹن کارپوریشن، ضلع انتظامیہ، پولیس کو جوائنٹ کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملتان میں شہریوں کو انسداد تجاوزات آپریشن کے مثبت نتائج نظر آنے چاہیے۔ کمشنر ملتان کو سٹیزن پورٹل اور سوشل میڈیا پر تجاوزات سے متعلق شکایات موصول ہو رہی تھی۔ کمشنر ملتان نے حکم دیا کہ تجاوزات مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ یہ مناظر ہے ملتان کی اہم شاہراہ سورج میانی کے، جہاں روڈ کی خستہ حالی انتظامیہ کی راہ تک رہی ہے۔ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ تقریباً آج سے 2 ماہ پہلے یہاں پر ایک گڑھا پڑا ہے، تو یہاں پر نا روزانہ کے بیس پہ تقریباً 10 افسران یہاں سے گزرتے ہیں اور وہ تصویر وغیرہ اس کی بنا کر جاتے ہیں۔ 4 ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں یہاں پر، تو اس کا کوئی یعنی کہ اس وقت تک رد عمل نہیں ہے۔ ایک جانب سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اوپر سے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے نے مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ہوش کے ناخن لے۔ سڑک کی خستہ حالی کے باعث کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ میں کئی بار انتظامیہ پہ گئے ہیں، اس روڈ کی وجہ سے بہت ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں ادھر، اور وہ انتظامیہ وہ کچھ نہیں کر رہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ فی الفور مسئلہ حل کرے تاکہ انہیں ریلیف مل سکے۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ شہر ملتان کی سبزی منڈی میں گندگی کے باعث جگہ جگہ تعفن پھیلنے لگا۔ صفائی ستھرائی پر ذرا برابر بھی توجہ نہیں دی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد ابراہیم۔ جنوبی پنجاب کی بڑی منڈیوں میں شمار ہونے والی ملتان کی سبزی منڈی میں جہاں لوگ معمول کی اشیاء خریدنے آتے ہیں، وہیں ان کو گندگی کے ڈھیر کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ گندگی کے باعث تعفن کی وجہ سے شہری اور دکاندار دونوں ہی پریشان ہیں۔ حکومت تو سب کچھ کرتی ہے، لیکن جو عملہ جو کام کرنے والا وہ آتا ہی نہیں ہے۔ اب حکومت ان کے پیچھے پیچھے تھوڑی پھرتی ہے، وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں بیٹھ کے وہاں پر، وہ تو آرڈر کرتی ہیں۔ اب یہ کام تو ان کا ہے نا جو تنخواہیں لیتے ہیں۔ گندگی کے باعث جہاں ماحول خراب ہے، وہیں بیماریاں پھیلنے کا بھی امکان بڑھتا جا رہا ہے۔ اپنے چاروں طرف نا تو کتنا گند مچا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بیمار پڑنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ اور آپ کو پتا پہلے کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ جو ہے نا مسئلہ حل ہو سکے۔ صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث منڈی میں بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تاہم شہریوں کا مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد اس طرف بھی نظر کی جائے اور اس معاملے کو حل کیا جائے۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। विहाड़ी में आवारा कुत्तों की भरमार, काटने के वाकयात बढ़ने लगे। आवारा कुत्ते ने मुतादिद इंसानों और जानवरों को काट लिया। शहरियों ने मिलकर खूनखार कुत्ते को मार डाला। मकीनों का इंतजामिया से नोटिस लेकर कुत्तों को तल्फ करने का मुतालबा किया गया। चीफ ऑफिसर राव नईम खालिद ने कहा कि शहर में बल्दिया की 2 टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी की जा रही है। विहाड़ी शहर और गिरदोनवा में इंतजामिया की मुबैना नाहली के बायस आवारा कुत्तों का राज है, जिसकी वजह से कुत्ते काटने के मुतअद्दिद वाकयात सामने आ गए। शहरी ने बताया कि आज भी बावले कुत्ते ने 3 अफराद को काटा। कई बार इंतजामिया को आवारा कुत्तों की तल्फी के लिए दरखास्त की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। DHQ अस्पताल में गुज़श्ता 2 दिनों में कुत्ते काटे के 10 मरीज आ चुके हैं। हम अपने बच्चों को किस तरह महफूज बनाएं? दूसरी तरफ चीफ ऑफिसर बल्दिया राव नईम खालिद ने कहा कि बल्दिया विहाड़ी आवारा कुत्तों के खिलाफ मुहिम चला रही है। रोजाना की बुनियाद पर हुकूमत को रिपोर्ट भी की जा रही है। हम अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। अभी आपको बताते हैं, बहावलपुर में जिनसी ज्यादती के केसेस में होलनाक इजाफा हो गया। 6 माह के दौरान विक्टोरिया अस्पताल में 46 रेप केसेस रिपोर्ट हुए। 6 कम उम्र बच्चे जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हुए, जबकि डॉक्टर्स की शहरियों को बच्चों को आगाही देने की हिदायत की गई है। रिपोर्ट करेंगे अतर लाशारी। नफ्सियाती मसाइल, फ्रस्ट्रेशन, तरबियत की कमी या फिर वालिदैन की लापरवाही, मुआशरे में रेप के केसेस बढ़ने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह के दौरान सिर्फ बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में खवातीन के साथ रेप के 40 जबकि कम उम्र बच्चों के साथ ज्यादती के 6 केसेस रिपोर्ट हुए। तो बेसिकली ये अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट 6 मंथ से, तो नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज किए हैं। तो हमें रेट्रोस्पेक्टिवली इसको देखने की ज़रूरत है कि ऐसे हमारे माशरे में ऐसे रिवाज क्यों आ रहे हैं कि छोटे बच्चों के साथ बदफेली के केसेस आ रहे हैं। रिसेंटली 23 तारीख को एक केस रिपोर्ट हुआ है जिसमें एक इमाम मस्जिद ने मदरसे के अंदर ही एक 7 साल के बच्चे के साथ बदफेली की है। तो हमें अपने नॉर्म्स को देखने की ज़रूरत है और इसको असेस करने की ज़रूरत है कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं रेप के और बदफेली के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की मुकम्मल निगरानी करें और उन्हें गुड और बैड टचेस के बारे में तालीम दें ताकि वो खुद को महफूज बना सकें। सबसे पहले वालिदैन को केयरफुल होना चाहिए कि सुपरवाइज्ड होने चाहिए बच्चे। अगर बाहर बच्चों को भेज रहे हैं तो उनको भी इसी तरह से ये जो आजकल जो कंसर्न है गुड टच और बैड टच की, तो उसके लिए बच्चों को एजुकेट करें कि मतलब आप कोशिश करें कि अवॉइड करें ऐसे लोगों से जो कोई इंसेंटिव दे के आपको बदफेली करने की कोशिश करें। डॉक्टर आमिर बुखारी का कहना था कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां साल रेप केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है, जो काबिल तशवीश है। कैमरामैन शाह सकलैन हैदर के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार जारी। निश्तर अस्पताल मुल्तान के आइसोलेशन वार्ड्स में कोरोना में मुब्तला मरीजों की तादाद 12 हो गई। उधर सरगोदा में मुतासरा मरीजों की तादाद 27 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अस्पताल मुल्तान के आइसोलेशन वार्ड्स में कोरोना में मुब्तला मरीजों की तादाद 12 हो गई। 6 मरीजों को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। इधर कोरोना के शुबा में 10 मरीज जेरे इलाज हैं, जिनकी रिपोर्ट्स का इंतजार है। रवां साल निश्तर अस्पताल में कोरोना के शुबा में 1890 अफराद रिपोर्ट हुए, जिनमें से 624 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। फोकल पर्सन डॉक्टर इरफान के मुताबिक रवां साल अस्पताल में 26,696 अफराद के नमूनों के टेस्ट किए गए, जिनमें से अब तक 2,948 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। यकम अप्रैल से 7 सितंबर के दरमियान कोरोना के बायस होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 169 है। सरगोदा में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा होने लगा। जिला भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 27 हो गई। मुतासरा मरीजों में 4 कॉलेज तालिबात, 2 टीचर्स और 2 स्कूल तलबा शामिल हैं। मुल्तान में सरकारी और निजी स्कूलों में कोरोना वायरस के टेस्ट जारी। अब तक मुल्तान के 26 स्कूल्स में 1112 तलबा के टेस्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ 2 तलबा का टेस्ट पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने वाले तलबा निजी स्कूल से हैं। 12 बॉयज स्कूल्स के टेस्ट हुए, जबकि 14 गर्ल्स स्कूल्स के टेस्ट हुए। बॉयज के 383 सैंपल्स लिए गए, जबकि 729 गर्ल्स के सैंपल लिए गए। महकमा सेहत और महकमा एजुकेशन के इश्तराक से स्कूलों में कोरोना वायरस के टेस्ट कराए जा रहे हैं। अदालती कार्रवाइयों की बात करते हैं। मुल्तान थाना जलीलाबाद ग्रास मंडी के इलाके में 10 साला बच्ची से इज्तिमाई ज्यादती के मामले पर समाअत हुई और एहतसाब अदालत मुल्तान ने करोड़ों रुपए की करप्शन करने के मुकदमे में चीफ एग्जीक्यूटिव मैपको समेत 3 मुलजिमान को नाकिस तफ्तीश और अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। थाना जलीलाबाद ग्रास मंडी के इलाके में 10 साला बच्ची से इज्तिमाई ज्यादती का मामला। अदालत ने इज्तिमाई ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार 2 मुलजिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। एहतसाब अदालत मुल्तान ने करोड़ों रुपए की करप्शन करने के मुकदमे में चीफ एग्जीक्यूटिव मैपको समेत 3 मुलजिमान को नाकिस तफ्तीश और अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी करने का हुक्म दे दिया। मुलजिमान के खिलाफ शहजाबाद के जिमनी इलेक्शन के लिए डेवलपमेंट के काम में मनपसंद अफराद को ठेके देकर करोड़ों रुपए करप्शन का इल्जाम था।
रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर शाहीना खोसा कहती हैं डीजी खान से पॉजिटिव पाकिस्तानी के नाम से मुहिम चलाई जाएगी और इसका नेटवर्क पूरे मुल्क में बिछाया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। साफ की रहनुमा डॉक्टर शाहीन खोसा ने रोही को बताया कि डीजी खान में पॉजिटिव पाकिस्तान के नाम से मुहिम चलाई जाएगी। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मस्बत सोच को आम किया जाएगा। अगर हमने अपने मुल्क को ठीक करना है तो हमें उसकी रूट्स को ठीक करना होगा। हम शाखें तो तराश रहे हैं, अपने सारे मसाइल की हजारों मसाइल हैं, हम हजारों शाखें तराश दें तो फिर लाखों निकल आती हैं। तो क्या हमने कभी रूट्स पे काम करने का सोचा? एमपी डॉक्टर शाहीना खोसा का कहना है कि मुहिम का आगाज स्कूलों और कॉलेज से किया जाएगा। इसके बाद पॉजिटिव पाकिस्तान मुहिम को दीगर शहरों तक फैलाया जाएगा। तो इसको हम डिफरेंट लेवल्स पर लेकर जा रहे हैं। शुरू में इसको कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी से करने लगी हूँ। इसके बाद मैं दावत देती हूँ आम पाकिस्तानियों को, मैं दावत देती हूँ खास तौर पे पेरेंट्स को, क्योंकि हमने अब पेरेंट्स और टीचर्स को, अब मैं दावत देती हूँ टीचर्स को, वो इस प्रोग्राम का हिस्सा वॉलंटरीली बने। हमारे गवर्नमेंट लेवल पे भी काम शुरू होगा। रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर शाहीना खोसा का कहना है कि पॉजिटिव पाकिस्तानी मुहिम के मस्बत नताइज सामने आएंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, डीजी खान। बहावलपुर समेत पूरे सराकी वसीयत में कपास की फसल चुनाई के मरहले तक पहुंच गई है। लाखों रुपए की ज़राई अद्वियात के इस्तेमाल के बावजूद भी काश्तकार अपनी फसल को बीमारियों से नहीं बचा सके। काश्तकारों का कहना है कि वो लाखों रुपए के मकरूज हो चुके हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जो कपास की फसल चुनाई के मरहले में दाखिल हो रही है, काश्तकारों की खुशी की बजाय परेशानी में इजाफा हो रहा है और इसकी वजह है सफेद मक्खी समेत दीगर बीमारियों का कंट्रोल न होना। काश्तकारों का कहना है कि लाखों रुपए के स्प्रे करके भी फसल नहीं बचा सके। गरीब आवाम बहुत परेशान है, इतने के हद तो ज्यादा बहुत नुकसान है। डबल मकरूज ही आवाम ऐसा मकरूज है, लाखों रुपए लोगों ने लेने पर बहुत परेशान है, बहुत हालात खराब है। काश्तकारों का कहना है कि फसल के लिए लाखों रुपए का कर्ज लिया हुआ है। फसल की हालत ऐसी नहीं कि कर्ज उतार सके। सफेद मक्खी की वजह से तैयार फसल खराब हो गई है। आपको बताते हैं एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस ने हाईकोर्ट बार मुल्तान में वकला की तकरीब से खिताब किया। उनका कहना था कि वकला ने पहले भी रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के लिए कुर्बानियां दी हैं। दोबारा वक्त आ गया है तहरीक चलाकर पाकिस्तान की सालमियत को बरकरार रखा जाए। तफसीलात माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। पंजाब अहमद उवैस ने हाई कोर्ट मुल्तान में वकला की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वकला के लॉन्ग मार्च का आगाज मुल्तान से हुआ था। लॉन्ग मार्च में खतरात के बावजूद मुल्तान के वकला इस्लामाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत को कायम रखने के लिए दोबारा तहरीक चलाने की जरूरत है और इस तहरीक का आगाज मुल्तान से होगा। मुझे वो दिन याद है जिस वक्त यहाँ पे लॉन्ग मार्च होनी थी और उसका आगाज मुल्तान से हुआ था। तो ये मूवमेंट कभी कामयाब ना होती। किसी सूरत ये कोई ऐसे सख्त उस वक्त इम्पेडिमेंट से खतरात थे इस किस्म के। एक फौजी से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन थी, लेकिन क्या जज्बा था कि हर चीज उस जज्बे के आगे हेच नजर आती थी। एडवोकेट जनरल का कहना था कि वकला की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें वसीका नवीस की तस्दीक के लिए वकी मोहर होना जरूरी होगा। इसी तरह वकला के लिए जिला की सतह पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने पर काम कर रहे हैं, जबकि वकला को हुकूमत की जानिब से हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब से सैंक्शन ले ली है और अब उसके ऊपर एक बाकायदा से काम भी हमने शुरू कर दिया। वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हम लोकलाइज्ड हाउसिंग स्कीम वकला के लिए बनाएंगे। तकरीब में सदर हाई कोर्ट बार चौधरी ताहिर महमूद, जनरल सेक्रेटरी सिजाद हैदर सिपरा, एडिशनल एडवोकेट जनरल रमजान खालिद जोया, एडिशनल अटार्नी जनरल जमीर हुसैन संडल, सीनियर वकला में महमूद अशरफ खान, खालिद अशरफ खान, राना इकबाल, नायब सदर ताहिर कुरैशी, सैयद अतर शाह बुखारी, मलिक हैदर उस्मान, वसीम मुमताज, चौधरी जुल्फकार अली सिद्धू, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अयूब बुजदार, सैयद रियाजुल हसन गिलानी, शाहजेब अफशार खान, एडिशनल सेक्रेटरी शफीक मलिक, एडवोकेट मुदस्सर जैदी और सैयदा फातिमा जिले हुम्मा समेत वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। के मर्ज की बर वक्त तशखीस से इलाज मुमकिन है। खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कैंसर केयर अस्पताल की जानिब से कैंप लगाया गया। कैंप में खवातीन का मुफ्त मैमो टेस्ट किया गया। 40 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं। डॉक्टर का कहना है कि 40 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन को साल में एक मरतबा ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस
का टेस्ट कराना चाहिए। ये कैंसर केयर हॉस्पिटल की जानिब से हम लोग ये मेमोग्राफी की सर्विस यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो यंग हेल्दी फीमेल्स होती हैं उनमें कैंसर के डायग्नोसिस के लिए टेस्ट किया जाता है कि इस पे अर्ली स्टेज में ही जो लंप वगैरह या जो भी इशू है उनका वो डायग्नोज हो जाता है और फिर फर्दर उसकी ट्रीटमेंट वगैरह अल्ट्रासाउंड बायोप्सीज और सर्जरी और रेडिएशन वगैरह उनको प्रोवाइड की जाती है। 40 इयर्स के बाद जितनी फीमेल्स हैं उनको एनुअली एक टेस्ट करवाना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ब्रेस्ट कैंसर कैंप में खवातीन के मुफ्त टेस्ट किए गए। खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस इनको बर वक्त इलाज से सेहतमंद होने में मदद दे सकती है। कलोरकोट में सालाना 7 रोजा स्पोर्ट्स गाला सज गया। टीमों को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अलमोइज इंडस्ट्री के जीएम खालिद रशीद कहते हैं, ज़हनी नशोनुमा के लिए खेलों की सरगर्मियां जरूरी हैं। कलोरकोट में अलमोइज इंडस्ट्रीज मुलाजमीन को तफरीही फराहम करने के लिए सालाना 7 रोजा खेलों की सरगर्मियां शुरू हो गईं। स्पोर्ट्स गाला में टीमों को 8 डिपार्टमेंट्स में तकसीम किया गया है। अलमोइज इंडस्ट्रीज के जीएम खालिद रशीद का कहना था कि ज़हनी नशोनुमा के लिए खेलों की सरगर्मियां जरूरी हैं। इंडोर और आउटडोर खेलों में क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी और वॉलीबॉल शामिल हैं। आखिर रोज ट्रॉफी और नकद इनाम दिए जाते हैं। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।